Psalm 95 said, "O come, let us sing to the Lord. Let us make a joyful noise to the rock of our salvation." Good evening to all of you. I welcome each and every one of you in this evening Vesper service. Let us pray. Our Heavenly Father, we thank you for this opportunity to gather together to worship your name. We thank you for sustaining each one of us thus far. We commit each one of us into your hand and this service as well. We pray that you take hold of this service. We ask this prayer in Jesus' name. Amen. And now it's time for scripture reading and pastoral prayer. For that I would like to call upon Brother Sota's school. आज के सामने बाइबल से जो वचन चुना गया है वो हम पाते हैं मत्ती रचित सुसमाचार चैप्टर 5 वर्स 6। धन्य है वे जो नर्म हैं, क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी हैं। ये वचन पढ़े और सुने जाने में परमेश्वर हम सबको आशीष प्रदान करें। आइए दुआ करें। सर्वशक्तिमान जी पिता परमेश्वर, आपकी बड़ी दयालु है, सबकी देखरेख करते हैं पिता परमेश्वर। आपने सुबह से आज शाम तक अपने अगुवाई किया है, उसके लिए बहुत धन्यवाद देते हैं पिता। हम प्रार्थना करते हैं आज शाम के लिए पिता, सबको भला चंगा रखना पिता, और जो भी पिता परमेश्वर हम स्तुति आराधना कर रहे हैं आपकी ओर से, आपकी अगुवाई में हम जीने पाए पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं विशेषकर पिता परमेश्वर आज की पिक्चर के लिए, जो भी आपके वचन को लेकर आ रहे हैं वो हमारे जीवन के लिए लाभदायक साबित हो, और पिता परमेश्वर एक नए जोश और नए उमंग के साथ में हम आपकी नाम को जय जयकार कर पाए। प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर इस रात भर के लिए पिता परमेश्वर आप हमें अपने पंखों तले में रखना, ताकि हम नए दिन, नए सुबह, नए उजियार हम देख सकें पिता परमेश्वर। ये विनती हम प्रार्थना करते हैं हमारे उदारता मसीह यीशु के पवित्र नाम में हम मांगते हैं, आमीन। Thank you, brother, for scripture reading and pastoral prayer. Now it's time to hear testimony. For that, I would like to call upon Brother Kennedy. Good evening, everyone. Good evening. My name is Kennedy. I'm from Churchanpur, District, Manipur. I have finished my class 12 at Rayban College in Churchanpur District, while pursuing my BA in DM College at Imphal. I made an accident. I got electrocuted and was hospitalized and lay in bed for 6 months. But the Lord has shown His mercy, and He has healed me from such an injury that all my body was burned down. He has healed me and given me a new chance to live my life. So I have decided to live my life for Him, and I have come here to study His holy word in this ABS college. Thank you. Now it's time for congregational song. For that, I would like to invite Brother Prince to lead us in congregational song. जय यीशु, जय यीशु। आइए हम साथ में मिलकर परमेश्वर की आराधना करते हैं। Let's stand together for worship our Lord and Jesus. Praise and worship book में song number 6, तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है महान। If we believe उसका प्यार महान है तो हमें
साथ में मिलकर उसकी आराधना करनी चाहिए। Let us stand together and worship our Lord. How many of us believe that our God is resurrected, God is a living God? Those जिन्होंने अपने हाथ ऊंचा नहीं किया, they need to recall that there are people from God. Let's sing together third stanza. अपनी रूह से भर दिया, अपनी शक्ति मुझको दी. अपनी रूह से भर दिया, अपनी शक्ति मुझको दी. ताकि तुम्हें गवाही तेरे जीवन की. अपनी रूह से भर दिया, अपनी शक्ति मुझको दी. ताकि तुम्हें गवाही तेरे जीवन की.
Thank you, brother, for leading us in congregation song. Now let us prepare our heart and mind to hear the word of God. For that, I would like to invite today's preacher, Mr. Rajesh Kumar Pandit. And also I request him to end the service with prayer. हालेलुया हालेलुया प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने आज इतने जवानों के बीच में प्रचार करने के लिए मौका दिया है। तो फिर से हम क्यों ना अपने उस जवान की जज्बा की तरह हम प्रभु की महिमा करें, क्योंकि आज यदि देखा जाए तो भारत के बॉर्डर पर जवान खड़े रहते हैं और बॉर्डर पे जाने से पहले कई बार कई दुख के साथ में वो ट्रेनिंग को प्राप्त करते हैं। आज हम भी मसीह यीशु की जवान है। हालेलुया हालेलुया। आज हम यीशु की जवान है, इसलिए आज वो इस देश के जवान होने के नाते इतना ताकत में रहता है। हम तो राजाओं के राजा के जवान है। हालेलुया आमीन। आप सभी को जय मसीह की। और मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ कि परमेश्वर ने मुझे इस अवसर को दिया कि मैं उनके वचन को आपके मध्य में बांट सकूं एवं चैपलिन मैम और स्टूडेंट को भी कि उन्होंने मेरे जीवन को इसी समझा कि मैं उनके वचन को परमेश्वर के वचन को प्रचार करने पाऊँ। और आज के लीडर को जिसने अच्छी तरीका से अगुवाई करने में सहायता की, परमेश्वर उनके जीवन में बहुत टाइप से आशीष प्रदान करे। आइए बच्चे में जाने से पहले हम सब प्रार्थना में जाए, अपने अपने सिरों को झुकाए। सर्वशक्तिमान जीवित पवित्र स्वर्ग और पृथ्वी के मालिक, मनुष्य को सृजने वाला परमेश्वर और श्वास को देने वाला परमेश्वर, प्रभु हम आपको धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए प्रभु कि आपने हमारे जीवन में दिया। प्रभु हमारे जैसे बहुत सारे ऐसे जवान हैं जो इस अवसर से दूर है। परमेश्वर हे पिता, हम आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आपने हमारे लिए ऐसा समय बनाया। परमेश्वर प्रभु, हम जो भी वचन को बोलते हैं सीखते हैं प्रभु जी, वो आपकी मदद के अनुसार, पवित्र आत्मा आपके अगुवाई के अनुसार हम बोलने का परमेश्वर, वचन के अनुसार प्रभु जी हम चलने वाले होने में परमेश्वर, केवल सुनने वाले और सुनाने वाले ना परमेश्वर, बल्कि उनके अनुसार सुन करके जीवन में हजार गुना आशीष को लाने वाले होने में पवित्र आत्मा। परमेश्वर धन्यवाद करते इस प्रार्थना को सुनिए। ये प्रार्थना भरकर यीशु के नाम में आमीन। जैसे कि भाई ने आपके सामने में वचन को पढ़ा, मत्ती अध्याय 5 वचन 6, तो उसने वचन को पढ़ दिया था। 5 पढ़ दिया था। ध्यान है जो नम्र है, जो कि पृथ्वी का अधिकारी है, नाम प्रविष्ट किया उसने, जो कि वचन है 6, धन्य है वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे है, वे तृप्त किए जाएंगे। एक पहाड़ी उपदेश प्रभु यीशु मसीह पहाड़ पर से, ऊंचे पर्वत पर से प्रचार को किया, जो कि ऐसा माना जाता है कि पर्वत एक प्रतीकात्मक है, क्योंकि ऐसा प्रतीत होता है कि मूसा और यीशु की समानता प्रकट की गई है, क्योंकि मूसा को भी व्यवस्था सिनाई पर्वत और परमेश्वर के द्वारा मिला था, और प्रभु यीशु मसीह भी पर्वत पर से प्रचार को किया।
इसलिए यीशु को एक प्रकार से नया मूसा के रूप में बोला जाता है। कई विद्वानों को मानना है कि यीशु एक प्रकार से नया मूसा है। Many scholars saying about the Jesus is the new Moses, because when Israelites coming from the slave of the Egyptians with Moses, when came to the Sinai Mount, and there God gave to the Moses 10 commands on the Sinai Mount. Just like in the New Testament also Jesus preached from the mount. That is similarity. A scholar saying on that point, Jesus is the new Moses. और कहा गया है क्योंकि मूसा की व्यवस्था और यीशु की शिक्षा में तुलनात्मक पाया जाता है, इसलिए आज के वचन जो चुना गया है मत्ती अध्याय 5 वचन 6, धन्य है वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। यीशु इस वचन में यीशु आध्यात्मिक भूख और प्यास का जिक्र कर रहा है। जो धन्य होना चाहता है अपने जीवन में, जो आशीषित होना चाहता है अपने जीवन में, उसको पहले परमेश्वर के धर्म और राज्य के प्रति भूखा होना पड़ेगा। लेकिन संसार भी एक शिक्षा देता है इंसान को, जो धनी होने के लिए, आशीषित होने के लिए कहता है कि किसी भी व्यक्ति को यदि आशीषित होना है तो व्यक्ति को शक्तिशाली बनना पड़ेगा तथा आत्मसंतुष्ट उसको होना चाहिए। इस संसार की शिक्षा है। लेकिन प्रभु यीशु कहता है कि धन्य होना है, आशीषित होना है तो धार्मिकता के लिए भूखे और प्यासे होना पड़ेगा, क्योंकि वचन में कहता है कि धन्य है वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं। धार्मिकता सबके लिए ग्रीक में जो वर्ड इस्तेमाल हुआ है वो है गिकाओ सुने, जिसका अर्थ होता है पवित्र होना, पवित्र आत्मा से भरपूर होना, मसीह के समान होना और परमेश्वर के साथ साथ चलना। पवित्र, आज हम मसीह कहलाते हैं लेकिन हमारे अंदर में पवित्रता ही नहीं है, पवित्र नहीं है, पवित्र आत्मा नहीं है, तो हम अभी भी इस धार्मिकता के लिए नहीं है। वचन में कहा कि परमेश्वर के साथ साथ चलना। नूह परमेश्वर के साथ साथ चलता था और परमेश्वर का डर और भय को मानता था। नूह परमेश्वर का आज्ञाकारी था क्योंकि वचन कहता है उत्पत्ति अध्याय 6 वचन उत्पत्ति का बीच में, जी नूह धर्मी पुरुष था और अपने समय के लोगों में खड़ा था। नूह परमेश्वर के वचन का, परमेश्वर के उस धर्म के प्रति वो प्यासे थे, भूखे थे। इस संसार के लिए भूखे नहीं थे, इस संसार के चीजों के लिए भूखे नहीं थे, बल्कि नूह परमेश्वर के प्रति भूखा रहा, परमेश्वर के प्रति जागृत रहा। इसीलिए तो नूह ने उस जल प्रलय के समय, उस संकट भरी समय संसार का लोग तो तरफ कर मरा, लेकिन नूह और उसके परिवार ने तो बच निकला उस समस्या में। क्या कारण है बचने का? कैसे बच गया नूह? क्योंकि नूह परमेश्वर के लिए प्यासा था। नूह परमेश्वर की धार्मिकता के लिए उसने जागृत रहा। इसलिए मेरे प्रिय भाई और बहनों, उस समय के लोगों में सिर्फ नूह के अलावा जितने लोग थे सब उस जल प्रलय के दौरान सब नष्ट हो गए, क्योंकि उस समय के लोग परमेश्वर के डर और भय को नहीं मानते थे, परमेश्वर के अनुसार नहीं चलते थे। इसलिए वचन
कहता है कि परमेश्वर ने देखा स्वर्ग से कि जितने मनुष्य की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है और उनके मन में विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है वह निरंतर बुरा ही होता है। परमेश्वर ने इंसान को बनाया, सृष्टि को किया, संसार में रहने के लिए दिया, लेकिन इंसान परमेश्वर के वचन को छोड़ करके अपने मन के अनुसार चलना शुरू कर दिया, अपने काबलियत के अनुसार चलना शुरू कर दिया। कौन है परमेश्वर का आज्ञा क्या है नहीं है कोई मतलब नहीं उससे। जैसा मन में आया, जैसा विचार में आया, उसी के अनुसार वो अपना राय के अनुसार चलते थे। और यही कारण हुआ कि परमेश्वर ने देखा स्वर्ग से, वचन में लिखा है उत्पत्ति 6:5, यहोवा ने देखा कि मनुष्यों की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है और उनके मन के अनुसार, मन के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता था वह निरंतर बुरा ही उत्पन्न होता था। और जब वह पृथ्वी पर मनुष्य को बनाने से पछताया और वह मन में अति खेदित हो गया। आज हम भी मसीह यीशु में नई सृष्टि है, नई बनावटी है, क्योंकि पुरानी बातें जो पुराने जीवन था वो यीशु ने दूर कर दिया है। आज हम नए सृष्टि होने के बावजूद भी यदि हम आज भी आज्ञाकारी नहीं होते हैं, आज भी हम परमेश्वर के धर्म के प्रति भूखे और प्यासे नहीं होते हैं, तो मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम अपने जीवन का निर्णय खुद अपने हाथ में लेकर तुम चल रहे हैं। क्योंकि नूह इसलिए बचा क्योंकि नूह परमेश्वर का डर और भय को मानता था और परमेश्वर के साथ साथ चलता था, वो उनके अनुसार जीवन को बिताता था। लेकिन नूह के अलावा सब इंसान अपने मन के अनुसार चलता था। आज हम भी नई सृष्टि है, आज हम भी नहीं चलते हैं परमेश्वर की इच्छा के अनुसार, परमेश्वर के आज्ञा के अनुसार, तो आज हमारा जीवन भी जल प्रलय के अनुसार इंसान के अनुसार हो सकता है। आज हम मसीह लोग कहे जाते हैं, लेकिन हमारे अंदर में मसीह का गुण नहीं है। वही संसार का गुण कूट कूट के भरा हुआ है, लड़ना, झगड़ना, आपस में मतभेद करना, जलन रखना। भैया हम तो नई सृष्टि है, ये पुरानी सृष्टि कहां से आ गई? इसके लिए कौन यीशु आ गया देने के लिए? इसीलिए कहते हैं कि लड़ना, झगड़ना, क्रोध, गुस्सा, छोटी छोटी बातों में गुस्सा हो जाना। अरे हम तो कहते हैं हम तो बड़े पास्टर है भैया, हम तो बड़े विश्वासी हैं, बड़े चर्च के पादरी हैं, हम बड़े चर्च के विश्वासी हैं, लेकिन हमारे अंदर में वही है जो संसार में अर्थात पुराने सृष्टि में जो था हमारे पास। इसलिए एक भजनकार कहता है, छोटी छोटी बातों में हम गुस्सा जाते हैं, जो ना करना हमको वो कर जाते हैं। मेरे दिल में यीशु आ गया, मैं हो गया दीवाना, यीशु का दीवाना, यीशु से मुझे प्यार हो गया है। छोटी छोटी बातों में गुस्से हो जाते हैं और एक बाद में कहते हैं हम तो वचन को बांटने वाले हैं, हम तो प्रचार करने वाले हैं, लेकिन हम ये नहीं कहते कि हम तो लड़ाई भी करने वाले हैं, हम तो एक दूसरे का चुगली भी करने वाले हैं। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए हमारे अंदर इस प्रकार की जो गुण है, जो संसारिक गुण है, निकालना जरूरी है। यदि नहीं निकालते हैं हम, यही बात था नूह के समय के लोगों को। और परमेश्वर ने देखा स्वर्ग से कि इंसान आज इस आज्ञा को तोड़ करके अपने मन के अनुसार चल रहा है। परमेश्वर ने उसको नहीं बख्शा, बल्कि उसको सत्यानाश कर दिया उस जल प्रलय को ला करके। लेकिन जिन्होंने परमेश्वर के प्रति भूखा रहा, परमेश्वर का डर और भय को माना, परमेश्वर का मसीह का जो चरित्र को लाया, वो केवल नूह रहा। और नूह के लिए परमेश्वर ने बोला, बेटा तू अपने लिए नाव को बना ले और तू और तेरा परिवार इस नूह इस जहाज में छुप जाना। और वो बच गया। बाकी लोग वही जल प्रलय के अनुसार खत्म। क्यों?
क्योंकि संसार की खोज में थे उन्होंने, संसार की बातों के ला रही थी। आज हमारे क्षेत्र में या पूरे भारत में देख लीजिए, आज मसीह लोग के ऊपर में इतना सताव क्यों बढ़ रहा है। कल के दिन में सर प्रवेश इतना बोल रहे थे कि कानपुर में जो रोमन कैथोलिक चर्च स्कूल के ऊपर अटैक हुआ है, किसी ऑफिसर ने कहा है कि मसीह लोगों के अंदर में मसीह का गुण नहीं है। The Christian people have done Christ like। वही संसार भरा पड़ा है। यही कारण है आज हमारे अंदर में डिनोमिनेशन के बीच डिनोमिनेशन लड़ाई चल रहा है, कम्युनिटी नीति के बीच चल रहा है लड़ाई, एक रंग का भेदभाव चल रहा है, ऊंच नीच का भेदभाव चल रहा है। हमारे अंदर में वही चीज नहीं दिखता है। कहाँ है हमारे जीवन में उस यीशु के लिए अपने जीवन को दे। हम तो कहते हैं हम परमेश्वर को वचन प्रचार करते हैं, लेकिन इस मसीह तो कहता है धन्य है वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे है, लेकिन क्या में मतभेद का भूखे प्यासे, जलन का भूखे प्यासे, लड़ाई का भूखे प्यासे, गुस्सा के भूखे प्यासे। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहन, आज अपने आप को देखने की जरूरत है कि आज हम लोगों की तरह हैं या उस समय के संसार के लोगों के जैसे हैं। यदि आज हम परमेश्वर के प्रति, धार्मिकता के प्रति हम भूखे प्यासे होते हैं, तो परमेश्वर आज हमारे जीवन को, हमारे जीवन के द्वारा हमारे परिवारों को आज बचाने के लिए तैयार है, हमारे जीवन को ऊंच उठाने के लिए तैयार है, हमारे जीवन में सारे संकट से बचाने के लिए तैयार है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर हो, मुर्दा परमेश्वर नहीं है, वो बदलने वाला परमेश्वर नहीं है, वो एक समान परमेश्वर है। जैसा पहले था अभी वैसा ही है और आने वाला भी वैसा ही रहेगा। कारण है हम अपने जीवन को हम कहाँ तक लेकर के हम जाते हैं। इसीलिए हमारे जीवन में धर्म के प्रति भूखे और प्यासे होना चाहिए। एक वचन में कहता है मत्ती 6:33 में, सबसे पहले परमेश्वर के धर्म और राज्य की खोज करो तो तुम्हें सब वस्तुएं मिल जाएगी। नूह केवल धर्म के वो प्यासे नहीं थे, बल्कि उसके अनुसार वो प्रचार भी करते थे, संसार भी प्रचार नहीं करते थे। अर्थात धन दौलत, शिक्षा, सहायता, मान सम्मान, इसके प्रचार नहीं करते थे। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में प्रचार नहीं करते थे वो, बल्कि वो परमेश्वर का प्रचार करते थे। लेकिन इस संसार के अंदर में एक व्यक्ति है बाइबल के अंदर जो उराव है। उराव किसी एक बाप का दो बेटे थे, एक का नाम उराव था। उराव सबसे छोटा पुत्र था, जो कि वचन पाया जाता है लूका का अध्याय 15 वचन 11 से 16 तक में। उसने कहा अपने पिताजी से, पिता मेरा जितना धन दौलत है सब अलग कर दीजिए, आज जो है हम उसको दे दीजिए। उसको दे दिया और वो अलग होकर के सारा धन दौलत को बेच करके कहीं दूर प्रदेश चला गया और वहां जाने के बाद उसने उस पैसा को गलत बातों में इस्तेमाल कर दिया, सही काम में नहीं लाया। क्योंकि वचन में कहता है, पढ़ दीजिएगा वचन को, लूका अध्याय 15 वचन 13। वहां उसने कुकर्म में अपनी संपत्ति को उड़ा दी। उसने संसार से मोहब्बत किया, इस संसार से प्रति उसने प्रेम को दिखाया। उसने सोचा कि इस पैसा के द्वारा, इस संसार के चीज के द्वारा हम शांति को प्राप्त कर लेंगे, आजाद हो जाएंगे। लेकिन उसने इस दौरान एक बार भी परमेश्वर को याद नहीं किया, एक बार भी धर्म के लिए नहीं जागा और उस देश में अकाल पड़ा। और ऐसा समस्या हुआ कि जितना उसका दोस्त था, चाहे वो लड़का भी दोस्त हो सकता है, लड़की भी दोस्त हो सकता है, पैसा था, पॉकेट गरम था, सब दोस्त था, जब अकाल पड़ा दुनिया गया गाड़ी अपना लगे बसाया। कोई नहीं काम किया उसको। क्यों? क्योंकि उसने धार्मिकता को एक बार भी नहीं देखा। इस संसार में भटके रहा, खोए रहा।
पैसा से मोहब्बत किया, दुनिया के लोगों से मोहब्बत किया, लेकिन हम धन्यवाद करते हैं क्योंकि नूह ने परमेश्वर के धर्म के प्रति भूखे रहा, प्यासे रहा, इसीलिए परमेश्वर ने उस जीवन को उस डूबती हुई नैया से बचा लिया, उसके परिवार को बचा लिया। यदि आप अपने जीवन में परमेश्वर के डर को, भय को मानते हैं, केवल आप ही नहीं बल्कि आपके जीवन के द्वारा आपके परिवार भी आशीषित होगा। और कई चीज हम देखते हैं एलिया के समय में भी अकाल पड़ा, बाढ़ी आई, समस्या बढ़ी, संसार के लोग त्राहिमाम कर रहे थे, लेकिन परमेश्वर ने एलिया के लिए क्रेत नाला और कौवे के द्वारा मीट और रोटी को भेजता था। क्यों? परमेश्वर को और दूसरों को भी भेजना चाहिए था। सारा लोग अकाल के मारे वहां में समस्या में झेल रहे हैं, लेकिन परमेश्वर ने एलिया के लिए बड़ा एक आशीषित जीवन को दिया, क्योंकि एलिया ने जीवन भर परमेश्वर के दरवाजे के पास में खटखटाते रहा, उसके अनुसार चलने का प्रयास किया, और परमेश्वर ने इसलिए उसके जीवन में अकाल के समय में भी उसके ऊपर में आंच नहीं आई, समस्या नहीं आई, बल्कि उसके जीवन को परमेश्वर ने बचाया। आज हम अपने जीवन में धार्मिकता के अनुसार चलते हैं, परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार चलते हैं, तो परमेश्वर आज हमारे जीवन को, चाहे संसार में कितना बड़े सताव आ जाए, संसार में कितने बड़े तूफान आ जाए, कुछ भी आ जाए, हमारा परमेश्वर आज भी जिंदा है बचाने के लिए। आज भी परमेश्वर हमारे संग संग रहने वाला परमेश्वर है। यदि आज हम नहीं मानेंगे आज्ञा को, तोड़ेंगे उसके नियमों को, तो मेरे भाइयों बहनों, हम भी उसी की तरह समस्या के अनुसार मरते मिटते चले जाएंगे, कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। बचना है तो एक ही है, परमेश्वर क्या क्या कार्य होना। तभी तो कहता है वचन में कि धार्मिकता के प्रति भूखे रहना, अर्थात पवित्र होना, पवित्र आत्मा से भरपूर रहना, मसीह के समान होना। मसीह की कहे जाते हैं, लेकिन मसीह का गुण कहाँ है अंदर में? मसीह गुण होना चाहिए, पहचान होना चाहिए। पहचान तो आगे पुरानी सृष्टि की, इसीलिए आज समस्या के अनुसार आज हमारे जीवन में देखने की जरूरत है, क्योंकि परमेश्वर का दास दाऊद अपने वचन में कहता है, अध्याय भजन संहिता 63 वचन 1, हे परमेश्वर तू मेरा परमेश्वर है, मैं तेरे यत्न से ढूंढूंगा और सूखी और निर्जल भूमि पर मेरा मन तेरा प्यासा है, मेरा शरीर तेरा अति अभिलाषी है। क्योंकि दाऊद को पता है कि परमेश्वर सूखी और निर्जल भूमि पर भी हमारे जीवन के लिए जल ला सकता है, खाना ला सकता है, हर चीज ला सकता है। इसराइली को हर चीज लाया, क्योंकि दाऊद परमेश्वर के आज्ञा के अनुसार चलते थे। और एक वचन में कहता है 42 में, जैसे हमने नदी के जल पिए हाँफते हैं, वैसे ही परमेश्वर मैं तेरे लिए हाँफता हूँ। जीवते पर ईश्वर, हाँ परमेश्वर में प्यासा हूँ, संसार का प्यासा नहीं, संसार का मोहब्बत का प्यासा नहीं, संसार के लोगों का प्यासा नहीं, बल्कि परमेश्वर का प्यासा हूँ। इसी प्रकार परमेश्वर के जीवन को बनाया, बचाया। आज हमारे जीवन को देखने की जरूरत है। आइए हम अपनी आंखों को बंद कर और परमेश्वर से प्रार्थना करें, आज हमारा जीवन कहाँ है? हे स्वर्गीय पिता, हो धन्यवाद, हो तेरी स्तुति आराधना करता समर्पण, आत्मा और जीवन करता समर्पण, आत्मा और जीवन तेरी आराधना में तन मन और धन मेरे मसीहा, हो धन्यवाद, हो तेरी स्तुति आराधना करता समर्पण, आत्मा और जीवन करता समर्पण, आत्मा और जीवन
आज मैं इस जीवन को, इस मंडली को प्रभु जी आपके हाथ में हम समर्पण करते हैं। इस संसार के हाथ में समर्पण नहीं प्रभु, बल्कि हम आपके वचन अनुसार समर्पण करना हम चाहते हैं प्रभु जी। हे पिता, आज हम मसीह कहलाए जाते हैं, लेकिन प्रभु हमारे अंदर प्रभु आपके गुण नहीं है परमेश्वर। एक दर्द की बात है प्रभु जी, लेकिन पिता आप हमें सहायता करके प्रभु हम आपके वचन अनुसार, यीशु आपके अनुसार हम चलने वाले होने में परमेश्वर। यानी पिता, शैतान की इच्छा है कि एक भी आत्मा स्वर्ग ना जाए, नरक चले जाए, सब आत्मा परमेश्वर से दूर रहे, लेकिन प्रभु आपकी इच्छा है हर आत्मा उस परमेश्वर के आराधना करने पाए। पिता धन्यवाद करते हैं सारे भाई और बहनों को प्रभु जी हम आपके हाथों में समर्पण करते हैं। आप अच्छा कर पाए ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में।